Yes, dear student, today's lecture is the first lecture which is based on the chapter photosynthesis, and this is the first part related with the light reaction. We know that in case of photosynthesis there are two type of reactions, light reaction and dark reaction. Light reactions and dark reaction both are take place at the site of the photosynthesis, means that chloroplast, and within the chloroplast the light reactions are take place in granum and dark reactions are take place in stroma. We know that in case of photosynthesis the carbon dioxide and water are the reactant which in presence of sunlight and with the help of the chlorophyll pigment they form the starch, or you can say sugar C6H12O6 plus 6O2 and oxygen. So product is the starch and sugar, water and oxygen. Basically the water oxidize and release oxygen and carbon dioxide reduce to form starch and sugar in the photosynthesis. So the definition of photosynthesis, or you can say photosynthesis, defined as it is a oxidation reduction reaction. Why it is known as oxidation reduction reaction? Because water is oxidized and release oxygen and carbon dioxide is reduced to form food, or you can say starch or and sugar. क्लियर बात हो गई. तो photosynthesis is a oxidation reduction reaction. My dear student, in case of photosynthesis we know that chloroplast is the site of photosynthesis, and within the chloroplast light reaction, or you can say photochemical reaction, or you can say light dependent reactions are take place in granum, and granum is consist of stalk of thylakoids. You have already know about this thylakoid structure which are arranged in a stalk of coin, and this stalk is called granum. So today lecture is based on the light reaction. So I would like to introduce the two terms, photosystem I and photosystem II. In another language you can say photoact I and photoact II, या PS1 or you can say PS2. The most important question कि ये फोटो सिस्टम है क्या. बच्चों होता क्या है कि इन द क्लोरोप्लास्ट में इन द क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी इज हार्वेस्टेड बाय लाइट एनर्जी. दीज आर दी फोटॉन्स. आप जानते हैं सन शाइन करता है लीफ के ऊपर, कुछ लाइट्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट होती हैं और कुछ ट्रांसमिट हो जाती हैं लीफ से. तो जो एब्जॉर्ब होती हैं ज़रा उसका डिस्कशन होगा इस टॉपिक में, जो कि लाइट रिएक्शन का पहला पार्ट है आपके लिए. ध्यान से देखिएगा. इन द क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी इज हार्वेस्टेड बाय two different functional unit. Means that photosystem I and photosystem II. These are the two functional unit. ये क्या कहलाएंगे बच्चों? फंक्शनल यूनिट. क्लियर बात हुई. देखते हैं. नाउ these functional units are called photosystem. इनको क्या कहते हैं? फोटो सिस्टम कहते हैं. बच्चे इन फोटो सिस्टम में जो ये क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए इज़ द मेन पिगमेंट दैट टेक पार्ट डायरेक्टली इन द लाइट रिएक्शन. और कौन सी लाइट लेते हैं? ब्लू, वायलेट
एंड रेड लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट, क्लियर हुआ। एंड एसेसरी पिगमेंट्स में भी क्लोरोफिल बी एंड मे बी येलो ऑरेंज कलर कैरोटीनॉइड्स विच आर नोन एज एसेसरी पिगमेंट्स, क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं, फोटो सिस्टम पर वापस आते हैं। नाउ मैंने कहा कि क्लोरोप्लास्ट में जो लाइट हार्वेस्टिंग दो फंक्शनल यूनिट्स हैं उनको कहा जाता है फोटो सिस्टम। क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम। बच्चों इन फोटो सिस्टम में ये जो फोटो सिस्टम है उसमें जो कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का दिख रहा है। जैसे क्लोरोफिल ए 660, क्लोरोफिल ए 670, 680 to 685, 690 एंड देन लास्ट में आपको दिख रहा है 6700, जिसको मैंने यहाँ लिखा रिएक्शन सेंटर। सेम इसी तरीके से फोटो सिस्टम 2 में भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं कि 650 भी है, 660 है, देन 670 है, 678। दीज आर दी वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इस बेस पे इनको बोला जाता है 660 नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने वाले मॉलिक्यूल्स इस फोटो सिस्टम में हैं, 670 की एब्जॉर्ब करने वाले हैं, 680 से 685 तक की, 690 तक की। इस तरीके से इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे लगभग 200 से 300 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको मैंने यहाँ अरेंज करके आपको दिखाया, क्लियर हुआ। बच्चों ये जो बीच वाली रेंज है इनको कहते हैं एंटीना। क्या कहते हैं, एंटीना। यानी P660 इज द एंटीना, P70 इज द एंटीना, P680 to 85 आर नोन एज एंटीना। क्लियर बात हो गई है। दीज आर नोन एज एंटीना मॉलिक्यूल्स। तो एंटीना मॉलिक्यूल्स और रिएक्शन सेंटर, एंटीना मॉलिक्यूल्स एंड रिएक्शन सेंटर और फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन का होगा। नाइट के समय ये कैसे रहते हैं, ये स्टेबल रहते हैं, अनएक्साइटेड रहते हैं, लेकिन दिन के समय जैसे ही इनको फोटान मिलते हैं ये एक्साइटेड स्टेज में जाते हैं और इन फोटान को लेने से इनमें इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं जो साइक्लिक जर्नी करेंगे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन में, यानी मतलब एटीपी को बनाएंगे, जो अगले लेक्चर में हम लोग चलेंगे लेकर। लेकिन पहले बेस ज़रा मजबूत करिए, देखिए ज़रा ध्यान से। नाउ मैंने कहा कि द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीना मॉलिक्यूल्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीना मॉलिक्यूल्स एंड रिएक्शन सेंटर एंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड फोटो सिस्टम। तो फोटो सिस्टम क्या होता है, एंटीना मॉलिक्यूल्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर दोनों में, फोटो सिस्टम सेकंड इधर है, फोटो सिस्टम 1 इधर है। तो जो फोटो एक्ट 1 कह लीजिए, PS1 कह लीजिए, फोटो सिस्टम 1 कह लीजिए, चाहे इसको फोटो सिस्टम 2 कह लीजिए, चाहे फोटो एक्ट 2 कह लीजिए, चाहे इसको PS2 कह लीजिए। क्लियर बात हुई। तो आप देखेंगे कि ये जो फोटो सिस्टम है PS1 और PS2, इसमें एंटीना मॉलिक्यूल्स, रिएक्शन सेंटर और फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर ये मिलकर कहलाते हैं। इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है फोटो सिस्टम। क्या कहलाता है, फोटो सिस्टम। बच्चों होता क्या है कि फोटो केमिकल रिएक्शंस इंक्लूड 2 फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, और यू कैन से द लाइट रिएक्शंस इंक्लूड 2 फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। 2 सिस्टम को इंक्लूड करती हैं लाइट रिएक्शन। क्लियर बात हो गई। बेटा जो रिएक्शन सेंटर होता है फोटो सिस्टम 1 का वो कहलाता है P700। यहाँ P वर्ड का मतलब होता है पिगमेंट एंड 700 इज द नैनोमीटर wavelength which is absorbed by this particular reaction center. Same here, P680 is the reaction center for PS2। जो PS2 है उसके लिए रिएक्शन सेंटर कौन सा है, P680। क्या है,
P680, यानी मतलब P stands for pigment and 680 refers 680 nanometer wavelength which is absorbed by this particular molecule, so it is called reaction center. क्लियर हुआ? पहला नीट का क्वेश्चन कि फोटो सिस्टम 1 या फोटो एक्ट 1 या PS1 में रिएक्शन सेंटर क्या है? आंसर इज P700। कितनी मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है रिएक्शन सेंटर? मीन्स दैट 700 नैनोमीटर। सेम हेयर इन फोटो सिस्टम 2 जो डिफरेंट एंटीना मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, उसमें से वो मॉलिक्यूल्स जो P680 नैनोमीटर की मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है बच्चों, वो कहलाता है उसका रिएक्शन सेंटर। सो पहला क्वेश्चन, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 दोनों जो फंक्शनल यूनिट हैं क्लोरोप्लास्ट में लाइट को हार्वेस्ट करने के लिए उनके रिएक्शन सेंटर कौन कौन से हैं? तो फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर आंसर इज P700 और फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर आंसर इज P680। चलिए, आपको पता लग गया P स्टैंड्स फॉर पिगमेंट एंड 700 एंड 680 refers to the wavelength of the light which is maximally, जो कि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर सकता है, और उससे कम की वेवलेंथ के लिए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके किसको दे देंगे? अपने रिएक्शन सेंटर को। सेम यहाँ भी यही होगा, P660 P70 P680 85 P90 ये डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और किसको देंगे? लास्ट में ट्रांसमिट किसको कर देंगे? रिएक्शन सेंटर को। P700 को इन केस ऑफ PS1 और यू कैन से फोटो एक्ट 1 और फोटो सिस्टम 1, एंड इन केस द P680 को दे देंगे इनके मॉलिक्यूल्स जो कि फोटो सिस्टम 2 के लिए रिएक्शन सेंटर का काम करेगा। क्लियर हुआ? तो बच्चों, इन केस ऑफ फोटो सिस्टम 1 डिफरेंट टाइप of molecule of chlorophyll A take part, different type of molecule of chlorophyll A take part on the basis of type of wavelength of light absorbed. On the basis of type of different wavelength of light is absorbed by these chlorophyll A molecules, they are known as chlorophyll A660, chlorophyll A670, chlorophyll A680 to 85 and chlorophyll A690. At the end आइए P700 पर क्या कहते हैं? At the end of the energy gathering pigment system, ये क्या है? एनर्जी गैदरिंग पिगमेंट सिस्टम है। सो एट द एंड ऑफ द एनर्जी गैदरिंग पिगमेंट सिस्टम, एट द एंड ऑफ द, इस पॉइंट पे आइए P680 को, एट द एंड ऑफ द एनर्जी गैदरिंग सिस्टम, जैसे ही आता है एनर्जी गैदरिंग पिगमेंट सिस्टम, अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। हेयर अ स्पेशल टाइप ऑफ, ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है, ब्लैक इन कलर, अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। Here is black in color P700 and here is P680. These are special type of chlorophyll A molecule. Clear बात हो गई? And these special type of chlorophyll A molecules is called reaction center. क्या कहलाते हैं? रिएक्शन सेंटर। तो ये तो जो एनर्जी गैदरिंग सिस्टम है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बना हुआ है जो अपने अपने हिसाब से वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कलेक्ट करके किसको दे रहे हैं? रिएक्शन सेंटर को। तो रिएक्शन सेंटर जो मॉलिक्यूल है इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर हुआ? जिसको कह देते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या कहते हैं? रिएक्शन सेंटर बच्चों। नाउ within the reaction center P700 and P680, within this reaction center photochemical reactions take place. फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, यहीं पर फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगी, यहीं पर लाइट रिएक्शन होंगी, यही ग्रेनम में टेक प्लेस होंगी।
ग्रेनम थैलाक्वाइट का बना होगा। अभी मैं बताऊंगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के, ध्यान से सुनिएगा। ग्रेनम तक सोचिएगा, यानी थैलाक्वाइट तक अपने ब्रेन को रखिएगा क्लोरोप्लास्ट में। आगे चलता हूँ बच्चों, क्या होता है कि द फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस फोटो सिस्टम फ्रॉम वेयर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर रिलीज, फ्रॉम वेयर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर रिलीज होते हैं। एंड दीज इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? अपनी जर्नी पर। कैसी जर्नी करेंगे? जहाँ से निकलेंगे, मान लीजिए फोटो सिस्टम 1 से निकले, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से होते हुए जाएंगे और दोबारा से फोटो सिस्टम 1 में आ जाएंगे और एटीपी भी बना देंगे। मीन्स दैट दिस इज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। उसी को हम आपको पढ़ा देंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आपने देखा कि जैसे ही ये P680 को सारे एनर्जी गैदरिंग करके सारे मॉलिक्यूल्स ने अपनी एनर्जी दी, एक्साइटेड हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से पास होगा और पास होते हुए बच्चों एटीपी बनाएगा, जो आप अगले लेक्चर में देखेंगे। और बनाते हुए इलेक्ट्रॉन जहाँ से इमिट हुआ वहीं आ गया। P700 से इमिट हुआ, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन चैनल से गया, एटीपी बनाया और दोबारा से P700 में आ गया। मीन्स दैट यही हम आपको पढ़ा देंगे अगले लेक्चर में, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और अगर इलेक्ट्रॉन निकले P680 से और जर्नी करे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से और होता हुआ फोटो सिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन आए, फिर वो यूज हो जाए NADPH बनाने में, दोबारा से P680 के पास ना आ पाए क्योंकि निकला P680 से था, तो वो कहलाएगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर बात हुई? तो यानी इलेक्ट्रॉन की साइक्लिक जर्नी है कि नॉन साइक्लिक जर्नी है? अगर साइक्लिक जर्नी है, जहाँ से निकला वहीं आ गया, जिस फोटो सिस्टम से निकला वहीं आ गया, PS1 से निकला PS1 पे आ गया, दिस इज नोन एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर? और अगर P680 से निकला फिर P700 तक आ गया, इलेक्ट्रॉन कैरियर से होता हुआ, एटीपी बनाता हुआ, फिर P700 ने उसको यूज़ कर लिया NADPH फॉर्मेशन के लिए। क्लियर हुआ? तो वो कहलाएगी नॉन साइक्लिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गया, जहाँ से इमिट हुआ था, जहाँ से एक्साइटेड होके आया था, वो यूज्ड हो गया, दोबारा वापस नहीं आ पाया, साइक्लिक जर्नी नहीं हो पाई। लाइट रिएक्शन के लिए आपको ये बेस दिमाग में लगाना होगा। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। नाउ you know that chemical reactions are take place in the photosystem 1 and photosystem 2। होता क्या है कि जो थैलाक्वाइड्स होते हैं, इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अगर क्लोरोप्लास्ट को देखें तो इस क्लोरोप्लास्ट को अगर यहाँ देख लें, सपोज दैट दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, तो within the chloroplast there are thylakoids. There are thylakoids. These are the thylakoids which are arranged like a stalk of coin. Stalk of coin, and this structure is known as granum, and rest part is called stroma. So within the stroma dark reaction are take place, and within the granum light reactions are take place. So today's topic is the light reaction part 1। क्लियर हुआ? तो जो ये थैलाक्वाइड्स है, इस थैलाक्वाइड की बच्चों आउटर सरफेस पर फोटो सिस्टम 1 पाया जाता है, इनर सरफेस पर फोटो सिस्टम 2 होता है। द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नीट क्वेश्चन मैंने क्या बताया? थैलाक्वाइड के आउटर सरफेस पर फोटो सिस्टम 1 इज प्रेजेंट, जिसका रिएक्शन सेंटर P700। P स्टैंड फॉर पिगमेंट, 700 फॉर द वेवलेंथ, नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ, 700 वेवलेंथ की लाइट को लेने वाला पिगमेंट, स्पेशल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। क्लियर हुआ? नाउ ठीक इसी तरीके से द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाक्वाइड PS1, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाक्वाइड इज PS2। द फर्स्ट डिफरेंस, पहला डिफरेंस कि जो फोटो सिस्टम 1 होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है बच्चों आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाक्वाइड पर। और जो फोटो सिस्टम 2 होता है, जिसका रिएक्शन सेंटर क्या होता है? P680, वो कहाँ पाया जाता है बच्चों? इनर मेम्ब्रेन ऑफ किसके? थैलाक्वाइड के। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं
बेटा जो फोटो सिस्टम 1 होता है उसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व, देखिए नहीं इवॉल्व हो रही। लेकिन जो फोटो सिस्टम 2 होता है वहाँ पर वाटर की फोटोलाइसिस होती है। आपने देखा मैंने यहाँ लाइट के लिए सनलाइट के लिए यहाँ पे सन बनाया, मीन्स दैट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द वाटर इज स्प्लिट इनटू प्रोटॉन, electron and oxygen. So splitting of water is take place, photolysis of water is take place in photosystem 2. So in case of photosystem 2 oxygen is evolved, but in case of photosystem 1 no oxygen is evolved. This is the second important NEET question. Clear हुआ? Now third one point, the reaction center of photosystem 1 is P700. Now the reaction center of photosystem 2 is the P680. Another important question NEET. The reaction center for photoact 1 P700. The reaction center for photoact 2 P680. P stand for pigment, मैं पहले बता चुका हूँ। 700 and 680 is the nanometer wavelength of the light. Clear हुआ? Now third important point here, in case of photosystem 1, photosystem 1 में NADPH2 बनता है, NADPH2 बनता है। NADPH2 फॉर्मेशन टेक प्लेस इन photosystem 1। और photosystem 1 है कहाँ? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। और photosystem 2 में नो फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। NADPH is not formed. NADPH is not formed in photosystem 2, but here NADPH is formed. Here no oxygen is evolved, but here oxygen is evolved because photolysis of water take place. Clear हुआ? Now third point. Now fourth important point for your NEET. This photosystem 1 take part in both cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. Photophosphorylation means formation of ATP. अगर इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 से निकले और साइक्लिक जर्नी करता हुआ ATP बनाता हुआ दोबारा से फोटोसिस्टम 1 में आ जाए, दिस इज नोन एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो बच्चों जो ये PS1 है, जो फोटोएक्ट 1 है, जो फोटोसिस्टम 1 है, जिसका रिएक्शन सेंटर P700 है, ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों फोटोफॉस्फोराइलेशन में पार्ट लेता है। लेकिन जो P680 होता है बच्चों, वो केवल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पार्ट लेता है। क्लियर बात हो गई? तो एक चीज़ क्लियर हुई कि फोटोसिस्टम 1 टेक पार्ट in cyclic as well as non-cyclic photophosphorylation, whereas photosystem 2 take part in only non-cyclic photophosphorylation. Clear बात हो गई? Next important point, it received, जो photosystem 1 होगा बच्चों, it received, क्या received करेगा? इलेक्ट्रॉन को। कहाँ से? photosystem 2 से। देखिए ज़रा मेरे मार्कर को जो मैं अपना स्टिक लिया हूँ। In case of photosystem 1, the photosystem 1 receive electron, क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? In photosystem 2, in photosystem 2, ध्यान रखिएगा। क्लियर बात हो गई? तो फिर फोटोसिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? फोटोसिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन लेगा बाय द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये देखिए, बाय द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मैंने सर्किल कर दिया है इलेक्ट्रॉन पे। जो फोटोलाइसिस का रिजल्ट हुआ था, प्रोडक्ट बना था, प्रोटॉन, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन। तो फोटोसिस्टम 2 जो होगा वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? बाय द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और फोटोसिस्टम 1 कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा? फ्रॉम द फोटोसिस्टम 2। क्लियर बात हुई? फोटोसिस्टम 2 किस में पार्ट लेगा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। और फोटोसिस्टम 1 किस में पार्ट लेगा? बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
फोटोवोल्ट लाइट की प्रेजेंस में। फास्फोराइलेशन एटीपी का बनना। साइक्लिक मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ से इमिट हो PS1 से PS2 में, PS1 से इमिट हो PS1 में साइक्लिक जर्नी से आ जाए, कहलाएगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से पास आउट होगा, अगले लेक्चर में आप देखेंगे। क्लियर हुआ? नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, now this photosystem 1 is not related with photolysis of water, it is related with photolysis of water. So what are the difference point between these two, photosystem 1 and photosystem 2, which is very important you to understand when we will discuss the cyclic and non-cyclic photophosphorylation. There are so many neat important questions we will be discussing over there. Now some of the neat important question related with this photosystem 1 and photosystem 2. So in case of the chloroplast, there are the two different functional unit photosystem. Number 1 photosystem PS1, where the reaction center is P680. Number 2 photosystem is PS2, or you can say photoactive, where the reaction center is P680, and in case of photosystem 1, the reaction center is P700. P700. Now this photosystem 1 is present with surface, क्या मैंने नीट के लिए इंपॉर्टेंट बताया, आउटर सरफेस ऑफ द थैलाकॉइड, एंड photosystem 2 इनर सरफेस ऑफ द थैलाकॉइड. नाउ व्हाट टाइप ऑफ द फोटोफॉस्फोराइलेशन, कैसे फोटोफॉस्फोराइलेशन होंगे, तो PS2 में ओनली नॉन साइक्लिक और PS1 में बोथ, इलेक्ट्रॉन साइक्लिक जर्नी से भी एटीपी बनाएगा और नॉन साइक्लिक जर्नी से भी एटीपी बना देगा. तो फोटोसिस्टम 1 टेक पार्ट इन बोथ साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक, बट PS2 टेक पार्ट ओनली इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एंड द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2 इज P680 and the reaction center of PS1 is P700. Clear? Now no oxygen is evolved PS1 में, but here oxygen is evolved. You know that photolysis of water take place, so as a product oxygen is evolved. Clear हुआ? Now during the non-cyclic photophosphorylation, which is started with the photosystem 1, noted, इससे start होगा, started with photosystem 1, the electron which is received by this photosystem comes from the photolysis of water. Now this electron move to the different electron carriers and form the ATP, then it received by the photosystem 1. तभी मैंने बताया था फोटोसिस्टम 1 के लिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन इलेक्ट्रॉन का सोर्स का काम करेगा, PS2, जिसका रिएक्शन सेंटर फिर बोलूँगा P680, जो कहाँ है, इनर सरफेस ऑफ द थैलाकॉइड. क्लियर हुआ? तो लाइट रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, थैलाकॉइड्स यानी ग्रेनम की बात कर रहे हैं. ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होती हैं, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती हैं. आपने देखा कि लाइट रिएक्शन में जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आप पढ़ेंगे उसमें फोटो सिस्टम का क्या रोल है. डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एब्जॉर्ब करके गैदर करके किसको दे दे रहे हैं, अपने स्पेशल मॉलिक्यूल्स को, यानी रिएक्शन सेंटर को, जो P700 होगा PS1 में और P680 होगा PS2 में. आपने बहुत से डिफरेंस देखे. NADPH की फॉर्मेशन PS1 से होगी, NADPH नहीं बनेगा PS2 में. क्लियर हुआ? ऑक्सीजन नहीं इवॉल्व होगी PS1 में. क्लियर हुआ? लेकिन ऑक्सीजन इसमें इवॉल्व होगी PS2 में, क्योंकि फोटोलाइसिस हो रही. यहाँ फोटोलाइसिस नहीं होगा वाटर का PS1 में, लेकिन PS2 में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस. So these are some important questions for the NEET, and this is the first lecture which is based on your light reaction, means that the introduction of light reaction. In the second lecture we will discuss about the complete process of cyclic and non-cyclic photophosphorylation. तो बच्चों पहले आप PS1 PS2 के क्वेश्चंस देखिए, नीट में सिंपली पूछे जा सकते हैं. जो मैंने अभी डिस्कस किया दोनों को डिफरेंशिएट
सेंस करके, और आपको सीखने के लिए जानना ज़रूरी है कि क्लोरोप्लास्ट में लाइट को हार्वेस्ट करने के लिए 2 फंक्शनल यूनिट काम करती हैं, जो कई क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की बनी होती हैं, जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके उनके रिएक्शन सेंटर को दे देती हैं ताकि वो एक्साइटेड हो जाएं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेज में आ जाएं और इलेक्ट्रॉन को इमिट करें, जो साइक्लिक जर्नी करे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से और एटीपी की फॉर्मेशन करे, जिसमें हम आपको साइक्लिक में पढ़ा देंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्लियर हुआ, जो PS1 से स्टार्ट होगा, लिसन हियर, और नॉन साइक्लिक जो स्टार्ट होगा PS2 से, उसमें पार्ट PS1 भी लेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन साइक्लिक नहीं जर्नी करेगा, वो यूज़ हो जाएगा NADPH2 बनाने में। क्लियर बात हुई? तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड वेट फॉर द सेकेंड लेक्चर एंड और यू कैन से सेकेंड पार्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। लेकिन उससे पहले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा, हो सकता नीट में इसी पोर्शन से ही आपको क्वेश्चन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।